पीछे 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 आ जाओ। Okay, just for the information of everybody, we have a press release to give to everybody. Okay, anybody can collect it from here. And I am the Society for Welfare of Indian and he is Captain Chima, he is President of Society for Welfare and Engineers Association. So, and all other departments have gathered here to appeal to the government of once the EOI, expression of interest, would have been completed, but it has not been done. So we are here to appeal. There is no march or nothing. It is just an appeal to the government of India by all the employees. Now anybody can come and ask whatever you want. एक मिनट सर शॉर्ट बना देते हैं फिर उसके बाद for a certain period of time now, and probably we will funding or putting in some part money. Then what happens is the aeroplanes are being deregistered to other carriers. The pilots would also eventually have to other employees will also have to look for other jobs because they have to support their dependents. अंशुमन It is very important. So our appeal over here is to get together all the commercial staff, security, pilots, all of us with the company. The brand is company to work for. I have been in the company for 24 years, and likewise many of our colleagues standing here have worked as. हाँ जी, मेरा नाम रमन है। हाँ सर, डिमांड क्या है आज की आपकी? हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी खाली एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इतनी 25 साल पुरानी एयरलाइन है और इसके जो 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी कुछ मदद करी जाए और इस एयरलाइन को बचाया जाए, जॉब्स को। और इस एयरलाइन के बंद होने से जो भी असुविधा हो रही है हमारे पैसेंजर्स को, और इतने जो बिकॉज़ ये बंद हो रही है, इतने ज़्यादा फेयर्स बढ़ गए हैं, इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए इस जेट एयरवेज़ को बचाया जाए। और यही हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, और इसलिए हम यहाँ पर एक पीसफुल मार्च कर रहे हैं आज। सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार, अभी भी टाइम है, अगर बैंक्स हमको थोड़े बहुत फंड्स दे दें जिससे इस एयरलाइन को नए जो बायर है वो ख़रीद सकें। इस एयरलाइन को अगर अभी पैसा नहीं मिलेगा तो ये एयरलाइन बचेगी नहीं, तो फिर बायर क्या चीज़ खरीदेगा जब कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर बैंक्स का भी नुकसान होएगा, एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान होएगा, इसमें किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है। And let the aircraft fly, because this is very important for our company, our economy and our families. We are going down the drain every day. Rate is better than ever. That's why they're doing it. We want this to be operational as soon as possible so that there should be less discomfort to the passengers and all the. If you go to the T3 terminal and you will see that it's deserted. Shops are empty. There's no sale. There are a lot of other families which are connected to Jet Airways because we feed so many passengers to the airport terminal. You ask the transport over there, the taxis. Everybody is facing this crunch. This is a big blow to Indian economy. Shining India, which the country is promising, which is going down drain every day. So we request Prime Minister to come out and help us. Not us, but the economy of the country. This is, I would like to add over here,
One more point. Like I said earlier, time is. I would like to add one point here that time is of essence. This is not like any other industry where you shut shop for a while and you can revive the company back after a period of time. It's a dynamic business. Every day the aircraft that are parked are still on rent. So the company, by even shutting down operations, is going to be paying rent on those aeroplanes, on the infrastructure. So the banks are not helping the company by any standard by not infusing funds. A delay of funding is going to amount to not helping the company, and that is why our appeal is quite straightforward, that timing is of essence. The banks need to intervene quick, and they need to get the airline back on its feet, and be rest assured this airline will emerge out of it, and it will emerge out of it because of the employees who are dedicated people, professional and very well trained. Thank you. My name is Kamaljeet Singh Chima. I'm a captain with Jet Airways for the last 24 years, and I'm also the president of the Society for Welfare of Indian Pilots. राकेश उपाध्याय। परेशानियां तो बहुत है, जैसे हम लोग की EMI नहीं पे कर पाए सैलरी नहीं मिलने के कारण। इससे बहुत लोग जुड़े हैं जो अपने घर का रेंट भी नहीं दे पाते। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हम लोग को जो आपको देखते हुए, हम लोग की परेशानियों को देखते हुए आप अंतरिम फंड जो है दे दें जेट एयरवेज को, जैसे कि हमारी सैलरी आ जाए और कंपनी जो है स्टेबल हो जाए, चलने लगे। दिल्ली में सारी एम्प्लॉय लगभग 22,000 है। उसके साथ और लोग जो जुड़े हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे हैं। सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि जो 1500 करोड़ का जो देने के लिए वादा किए थे, ये फंडिंग दे कि कम से कम एयरलाइन जो ग्रोथ पे चलने लगे। पकड़ूं? हाँ, मेरा नाम अरुण है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जैसे कि फंडिंग ये तो इतनी ऑलमोस्ट रुकी, हमें टेम्परेली शट डाउन भी करना पड़ गया है। अब इसकी बिडिंग प्रोसेस, जैसे बिडर्स अगर फाइनलाइज हो गए हैं और बिडर्स फाइनलाइज हो गए हैं, तो इस प्रोसेस को जितने से जितनी जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि अब जैसे टेम्परेरी शट डाउन हो गया है, ये ज़्यादा दिन तक हम शट डाउन करके नहीं रह सकते। तो ये जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको रिवाइव करें, जितनी जल्दी बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट करके नए इन्वेस्टर को टेबल पे लाएं, वो उनको एयरलाइन चलाने का मौका दें और जितनी जल्दी जो हो सके इसको रिवाइव करें, ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनके परिवार हैं, वो अपनी ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल करें उसको। सरकार से तब तक तो हम यही बात कर रहे थे कि जितनी सी जल्दी हो इंटरिम फंड दे जाए, क्योंकि ये बिडिंग प्रोसेस कितना लंबा चलेगा कुछ पता नहीं। तब तक अगर जहाज उड़ाने हैं तो थोड़ा बहुत तो फंड चाहिए। तो सरकार से हमने पहले भी 13 तारीख को हमने IJ एयरपोर्ट में भी वो अपील की थी, एक वो मार्च और अपील की थी। उसमें भी हमने सरकार से यही ख्वाहिश की थी कि आप इस पर इंटरवेन करें और आप और SBI मिलकर जितने से जल्दी हो सके फ़ंड रिलीज़ करें। अब वो कल ये खबर आई कि फ़ंड अभी तक SBI नहीं रिलीज़ कर रहे। कंपनी ने उनको बोला कि आप फ़ंड नहीं रिलीज़ कर रहे तो हमें ऑपरेशन शट डाउन करना पड़ेगा, और जो कि हुआ। अब इस चीज़ को ज़्यादा और ना खींचें और बिडिंग प्रोसेस इसे कंप्लीट करें, और अगर बिडिंग प्रोसेस ज़्यादा समय लगा रहा है तो एटलीस्ट इंटरिम फंड देके हम जहाज दोबारा उड़ाना शुरू करें, क्योंकि अगर हम ये अताह तक इसको अगर हम होल्ड करते रहेंगे, कंपनी बंद करते रहेंगे, तो फिर इसका रिवाइव करना मुश्किल हो जाएगा और इसके जो जुड़े जितने भी लोगों की नौकरियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। हाँ जी, मेरा नाम है राजेश हांडा। मेरा नाम राजेश हांडा है जी। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੋਇੰਗ 737 ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੈਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ EMPLOYEES, ਲੋਡਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਪਾਇਲਟਸ ਔਰ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, सब डिपार्टमेंट ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਜ਼ EMPLOYE ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ 700 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਐਜ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। हम ओके, मेरा नाम शिजी है। मैं जेरेवीज में पिछले 16 साल से काम कर रही हूँ एज ए ग्राउंड स्टाफ। मोदी जी, हम चाहते हैं कि ये मैसेज आप सुने। मोदी जी, आप हमेशा कहते हैं मेक इन इंडिया। जेरेवीज मेक इन इंडिया ब्रांड है, आपके एंड हमारे देश की शान है। आपके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से पूरी दुनिया इंडिया को जानती है, पर ये इंडिया पूरी दुनिया को दिखाता और घुमाता कौन है? जेट एयरवेज। जेट एयरवेज इज अ गेटवे ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। टोरंटो, लंदन, मैनचेस्टर, पेरिस, एम्स्टर्डम, मिडिल ईस्ट से लोग हमारी फ्लाइट लेके आते हैं मोदी जी वाला इंडिया देखने। जेट एयरवेज इज द प्राइड ऑफ इंडिया। मोदी जी, आपको पता होगा सारा एविएशन रेवेन्यू अब फॉरेन कैरियर्स को जा रहा है। वो लोग कमा रहे हैं। पैसेंजर एंड कार्गो दोनों अपनी फ्लाइटों पे अपने मुंह मांगे दाम पे भर के लेके जा रहे हैं। वो कमा रहे हैं और हम भूखे मरने वाले हैं। मोदी जी, ये सिर्फ 20,000 एम्प्लॉयज़ और उनके 1 लाख फैमिलीज की बात नहीं है। ये बात है इंडिया के इमेज, मेक इन इंडिया ब्रांड, इंडियन टूरिज्म, कार्गो हैंडलर्स, फॉरेन डिग्नेटरीज, नेशनल गेस्ट, सप्लायर्स एंड एयरपोर्ट टैक्सेस की। इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्लम्प आ सकता है। एक डेवलपिंग नेशन की पहचान उसका स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ हम दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। इंडिया को दुनिया से जोड़ने वाला मेक इन इंडिया ब्रांड आखिरी सांस ले रहा है। मोदी जी, हेल्प, सेव जेट एयरवेज। अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, वी विल बी अ बर्डन ऑन इकोनॉमी। बाकी सारी एयरलाइंस के स्टाफ को भी अगले 5 से 10 साल तक कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जेट के एम्प्लॉयज़ अपनी ज़रूरत के कारण आधी सैलरी पे काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मोदी जी, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, उम्मीद आपसे है। अच्छे दिन लेके आइए। जैसे हम सेव जेट एयरवेज बोल रहे हैं, अगर हम हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे छोटे बच्चे को आप बचा लेंगे तो हम बोलेंगे थैंक यू मोदी जी। मोदी जी, प्लीज़ सेव ऑल ऑफ अस, सेव आवर नेशन। जैसे आपकी एक ललकार से, बिना एक वार से दुश्मन हमारे गेट पे हमारे ब्रेवार्ट अभिनंदन जी को वापस हमें करके गए, वैसे ही आपकी एक आवाज़ से हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। मोदी जी, एक बार आप बोल दीजिए, आई विल सेव जेट एयरवेज। प्लीज़ सेव जेट एयरवेज। Airline India's largest private airline has shut down all operations, international as well as domestic. And now there are questions aplenty, but there are no answers. We don't know who to blame for this. Whether it is the jet management, whether it is the government, whether it's the question. But here there are the employees who have not been paid their salaries, and now the future seems bleak. Sir, what are the finalized process by qualified people, pilots, engineers, that structure